Hello, good morning, friend. So, today we are going to discuss about one more interesting topic and very easy topic, question tag. In your previous standards, you have already learned about question tag, and today we are going to repeat the same topic. Okay, we will just see and we will revise the topic, question tag. So, before we start the topic, I want to tell you that in board examination in grammar section, you will have question in section C, do as directed. So in this section, you will have questions about grammar topics. For example, active passive voice, degree, question tag, remove to, like this. So in remove to, question tag, degree, active passive voice, these four topics you have to be very careful about it. And these are the topics you can see in the every board examination. ठीक है, हर एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन तो होंगे तो रिमूव टू वाला, ओके, क्वेश्चन टैग वाला, एक्टिव पैसिव एंड डिग्री, तो ये चार टॉपिक्स में से मे भी चार हो सके या तो फिर चार में से तीन तो हो गए। तो रिमूव टू तो आपने देख लिया। तो क्वेश्चन टैग एक बहुत ही इजी टॉपिक है जो आपको एक मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो वो स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन टैग्स, व्हाट इज क्वेश्चन टैग? सो व्हाट इज क्वेश्चन टैग्स? और क्वेश्चन टैग्स आर the short questions asked at the end of the sentence. तो क्वेश्चन टैग क्या है? सबसे पहले दो क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चंस asked at the end of the sentence. तो सेंटेंस के एंड में जो हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। कई बार आपने तो लोगों को बातें करते हुए सुना होगा इंग्लिश में, then they often say it's very beautiful, isn't it? तो ये जो है वो क्वेश्चन टैग, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो जब दो आदमी या तो फिर तो जो दो तीन इंसान एक साथ बात करते हैं तो वो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है दूसरे को पूछते हैं, तो दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन एंड वी कॉल इट क्वेश्चन टैग्स। ओके, सो द सेम थिंग हियर, क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चंस asked at the end of the sentence. Next is a comma is put at the end of sentence and then the question tag. This is very important. You have to be very careful about it, and you have to keep in your mind. A comma is put at the end of the sentence and then question tag. जब हम question tag यूज करते हैं तो उससे जब सेंटेंस होता है, एग्जाम में एक सेंटेंस होगा पूरा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, तो स्टेटमेंट के बाद हमें कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद क्वेश्चन टैग और उसके बाद question mark. So a comma is put at the end of the sentence and then the question tag. Okay, तो हमें पहले सबसे पहले कॉमा करना है, उसके बाद क्वेश्चन टैग करके फिर क्वेश्चन मार्क करना है। A positive statement will have a negative question tag and a negative statement will have a positive question tag. जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और जब वो नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी हम उसको चेंज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो बाकी ये सब अब चीज याद रखनी है। जो तीन मेन चीज है वो a comma is put at the end of sentence and then question tag, one thing. The second thing is a negative or a positive statement will have a negative question tag and a negative statement will have a positive question tag. ये तीन चीज आपको बहुत ही ध्यान रखनी है जब आप क्वेश्चन टैग की बात करें तो। ओके, तो ये तीन चीज हो गई। नेक्स्ट इज सेंटेंस विद एनी नेगेटिव वर्ड इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, a sentence with any negative word, okay, is considered as a negative sentence. जब सेंटेंस में कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड आ जाए तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, हम उसको एज अ नेगेटिव सेंटेंस कंसीडर करेंगे और उसका क्वेश्चन टैग कैसे आएगा, उसका पॉजिटिव में आएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल
never, hardly, nothing, seldom. These are the words we can say shows. They show negative meaning or negative word you can say. So statement or sentence with a negative word is considered as a negative sentence. In imperative sentence we will use you. वो आगे देखेंगे. Okay. Imperative sentence we will use because when you are in imperative sentence it means आज्ञार्थवाक्य जिसको हम हिंदी या गुजराती में आज्ञार्थवाक्य बोलते हैं. It means we are asking someone to do something. Okay. For example, in the classroom the teacher said get out. So these are the imperative sentence, short sentence and imperative sentence. When you are asking someone to do something, for example, keep quiet, okay, hurry up. So these are the imperative sentence. Next is let's shall we. Okay, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है. जब let us इसको हम शॉर्ट में लेट्स कहते हैं, तो लेट वाली जो सेंटेंस पैटर्न होती है उसमें हम शैल बी क्वेश्चन टैग यूज करेंगे. जब सेंटेंस में लेटस का मतलब क्या होता है, चलो साथ में कुछ करते हैं. ओके, लेट अस गो टू स्कूल. सो इट मींस वी आर गोइंग टू स्कूल टुगेदर. ओके, लेट्स डू दिस वर्क, लेट्स क्लीन हाउस. ओके, सो दिस आर, इट मींस वी आर डूइंग सेम थिंग टुगेदर. तो शैल बी, ओके, अस, लेट अस. आपको बताइए इसका शॉर्ट फॉर्म. ओके, लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स है. तो वो हम शैल यूज करेंगे क्वेश्चन में. Now, if you are talking about, or if we talk about the sentence pattern or something like structure, or we can say how we can make positive question tag and how can make negative question tag. When you have to be careful. So first here, positive question tag, auxiliary or to be formed, then subjective pronoun plus question tag. Sorry, question mark. For negative statement or negative question tag, we will use auxiliary verb to be formed, NT, not का short form, plus subjective pronoun plus question mark. We have to be very careful about when we are talking about negative question tag. If the statement or sentence is positive, okay, then we have to put negative question tag. But in negative question tag, you have to use short forms. You always have to use short forms. Okay? तो short form use करेंगे. R not का M not हो जाएगा. Sorry, R and I हो जाएगा. ठीक है? Can not का can't हो जाएगा. Shall not का shan't हो जाएगा. Will not का won't हो जाएगा. वो आपको बताइए. Is not का isn't हो जाएगा. तो ये सब short form use करने आपको. जब आप negative question tag use कर रहे हैं तब. अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बोल सकते हो उसको, वो मैंने लिखा है. तो आपको उसको सॉल्व करनी है. सबसे पहले आप एक बार देख लो सब सारे क्वेश्चंस. ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री. सोनाक्षी इज नॉट वेल टुडे. शी कैन स्पीक जर्मन. ही विल नॉट हेल्प अस. आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म. शी ब्रोक द ग्लास. शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. आई एम अ डॉक्टर. ही नेवर गोज आउट. ओपन द विंडो. लेट्स इन्फॉर्म द police. Okay, so these are some examples and you can say some exercise for you, so you can answer it first and then you can check yourself. अब एक बार पहले देख लो अपने आप, उसको सोच लो कि किसने कौन सा आंसर आएगा. तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज याद रखनी है जब क्वेश्चन टैग हम यूज करते हैं तब. तो सबसे पहले तो हमें कॉमा रखना है सब क्वेश्चन के बाद, सेंटेंस के बाद. ये आपको याद रखना है. ओके, तो ये कॉमा हो गया सबके पीछे. मतलब जब आप सेंटेंस एग्जाम में लिखो तो जब अभी सेंटेंस लिखो उसके बाद कॉमा रखना है. देन यू हैव टू से इफ और वेदर सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. उसके बाद आपको देखना है कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या तो फिर नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा. वो तो आपको पता ही है. ओके, the next thing you have to remember is this tenses. Which tense it belongs. Okay, कौन सा tense है ये? For example, verbs, so present tense, is, present tense, can, modal auxiliary. Okay,
हैव नॉट, प्रेजेंट परफेक्ट, ब्रोक, पास्ट टेंस। ओके, तो ये आपको देखना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। एक और चीज एक ही आपको मैं बता दूं कि सबसे इजी आपको लगेगा कि आप एक इजी वे ये होगा कि जब आप सेंटेंस देखो तो इज है, कैन है, विल है, हैव, हैज, ये सब पहले आपको देखना है कि आर है तो इज लिखा है, एम लिखा है, एम का तो चेंज रहेगा वो अलग है, ठीक है। तो हैज है, हैव है, विल है, इज है, कैन है, ओके। तो ये सब अगर हो जाए तो उसको आप सिर्फ वहां से जाके पॉजिटिव और नेगेटिव करो, नेगेटिव और पॉजिटिव करो। ये एक शॉर्ट वे है, ठीक है। मैं आपको समझा दूं कैसे। फॉर एग्जांपल हम पहले सेंटेंस देखते, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ओके। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, सो दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव करने के लिए हम उसको पहले उसके साथ वर्क्स है, फॉर एग्जांपल तो ये प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है, ये वर्क्स प्रेजेंट टेंस है। तो उसको अगर हम नेगेटिव करेंगे तो उसका हो जाएगा डजंट, और ही, क्योंकि डजंट का यूज किया क्योंकि यहाँ पे ही है, तो डजंट ही, ओके। He works in a factory, doesn't he? He works in a factory, doesn't he? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग, ओके। नेक्स्ट इज सोनाक्षी इज नॉट वेल टुडे, तो यहाँ पे इज ऑलरेडी हमारे पास है, तो सोनाक्षी इज नॉट वेल टुडे, तो इज प्रेजेंट टेंस हो गया और इज हमारे पास है और सोनाक्षी है। तो हमें करना क्या है उसको, फॉर एग्जांपल ही वर्क्स है, तो यहाँ पे डू या डज आएगा, ओके। प्रेजेंट टेंस है तो नेगेटिव है, अगर प्लूरल है तो डू आएगा, बाकी सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो डज आएगा। तो ये डजंट हो गया। अभी सोनाक्षी इज नॉट वेल टुडे, नॉट है यहाँ पे, क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। उसको पॉजिटिव करना है तो इज सोनाक्षी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सोनाक्षी का क्या हो जाएगा, शी, ओके। इज शी, अगर यहाँ पे बॉय का नाम है तो इज ही, वेरी सिंपल, ओके। शी कैन स्पीक जर्मन, तो कैन है ऑलरेडी, शी कैन स्पीक जर्मन, तो और ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, कान शी, ओके, कान शी, ओके, क्लियर। अभी तो इजी हो जाएगा, फटाफट आंसर हो उसका। ही विल नॉट हेल्प अस, he will not help us, तो will not है तो नेगेटिव है, तो उसका पॉजिटिव will he, okay? I have not seen this film, okay, I have not seen this film, तो have already हमारे पास है, प्रेजेंट परफेक्ट। have तो जो not है वो नेगेटिव है, तो not को हटा दो, have I, क्योंकि वो नेगेटिव है, ओके। I have not seen this film, तो have I। नेक्स्ट इज she broke the glass, she broke the glass, अभी यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, ओके। अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो हम डू या डज यूज करेंगे, और पास्ट टेंस होता है तो फिर हम did यूज करेंगे, ओके। वी विल यूज did विद द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वर्ब के साथ डू या डज यूज किया, तो यहाँ पे सेम थिंग वी हैव टू यूज did, और ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, डिडंट क्या है आगे, शी, ओके, डिडंट शी। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, हैज हमारे पास ऑलरेडी है, पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव, हैज नॉट का हैजंट, आगे क्या है, शी, हैजंट शी, ओके। आई एम अ डॉक्टर, अभी जब एम यूज हुआ आई के साथ तो एम नॉट का जो क्वेश्चन है वो आर एन हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव में, ओके। तो आई एम अ डॉक्टर तो उसका हो जाएगा आर एन, एम नॉट का हो जाएगा आर, ओके। एम प्लस नॉट का हो जाएगा आर, ओके। तो
आई एम डॉक्टर, तो आर टाइप। ओके, नेक्स्ट इज he never goes out, he never goes out। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हो तो वो कंसीडर करता है एज नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नेवर यूज हुआ है, जो नेगेटिव वर्ड है, he never goes out। ओके, तो नेवर तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। ओके, टेंस कौन सा है, गोज, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस है तो हमें क्या यूज करना है, डू या डज। हमारे पास एम इज आर नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, डू या डज। तो डज और ही, ओके, डज ही। तो ही नेवर गोज आउट, डज ही, तो ये उसका पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज ओपन द विंडो। ओपन द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे। तो ओपन द विंडो अभी इंपरेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसके पास हमारे पास दो सेंसेस हो गया। आप 11 12 स्टैंडर्ड में हो तो आप समझ सकते हो कि जब ओपन द विंडो ऐसे कुछ कोई मैं आज्ञा करूँ या तो फिर मैं किसी को स्टूडेंट को ऐसा बोलूँ ओपन द विंडो, तो उसमें दो सेंस होता है। एक तो या तो फिर मैं नॉर्मल सेंस में बोल रहा हूँ, उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो फिर मैं गुस्से आके, या तो फिर बोल सकते हैं आप सीरियस सेंस। दो सेंस है हमारे, एक तो नॉर्मल सेंस होता है, एक तो सीरियस सेंस होता है। तो नॉर्मल सेंस में जब मैं बात करूँ तो मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ विल यू, ठीक है, ओपन द विंडो विल यू। अदरवाइज ये सीरियस सेंस हो, ओके ओके, और मैं इसको अगर वो मना नहीं, मतलब वो नहीं मान रहा है, तो मैं इसको उसको ऐसा बोलूंगा, वांट यू, बोथ आर राइट। ओके, तो ओपन द विंडो, तो वांट यू। So these are the imperative sentence and other sentences we are talking about. Let's inform the police. Let's inform the police. तो मैंने आपको पहले बोला था कि let us इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम उसको वहाँ से ली जाए तो shall we, okay? तो ये हो गया लेटेस्ट वाला एक सेंटेंस हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन टैग। आप देख सकते हो यहाँ पे डजंट ही, इफ शी, कांट शी, विल ही, हैव आई, डिडंट शी, हैजंट शी, आरंट आई, डज ही, वांट यू, शैल वी, दिस आर द क्वेश्चन टैग। जब हम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे उसका आंसर लिख सकते हो। कभी कभी सेंटेंस में एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम, नन ऑफ देम, अगर ऐसा क्वेश्चन में हो, सेंटेंस में हो, तो उसके क्वेश्चन टैग में हम दे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एवरीवन अपोज्ड हिम, तो एवरीवन अपोज्ड हिम, तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो अपोज्ड पास्ट टेंस है तो हमें डिड यूज करना है, तो डिडंट दे, तो एवरीवन का दे हो जाएगा। ओके, एवरीवन अपोज्ड हिम, तो डिडंट दे, तो ये उसका हो जाएगा दे हो जाएगा। नो वन कैन चैलेंज गॉड, नो वन कैन चैलेंज गॉड, कैन दे, क्योंकि यहाँ पे नो वन है तो ये नेगेटिव वर्ड है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। नो वन कैन चैलेंज गॉड, कैन दे यूज करेंगे हम। ओके, वन के लिए दे यूज करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्वेश्चन टैग में। ओके, और कुछ आपको पूछना हो या तो कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, सो दिस क्वेश्चन टैग, सो बी केयरफुल अबाउट क्वेश्चन टैग एंड रिमूव टू it can help you to score marks in the examination in grammar section. So this is question tag. In next time we will discuss about another topic. Thank you so much.